Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is importance of two nation theory. टू नेशन थ्योरी की क्या अहमियत थी मुस्लिम पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान में इसने किस तरह से हेल्प किया. टू नेशन थ्योरी was the basis of the struggle for creation of Pakistan, which held that Hindus and Muslims are two separate nations. They, in spite of living together for centuries, could not forget their individual culture and civilizations. The Muslims considered that Western democracy was not suitable for India, where there were two communities. One was in majority and other was in minority. In the case of United India, Hindus will remain in power, which will harm the interests of Muslims. The Muslims also apprehended that they would lose their identity if they remained a part of Hindu society. On one occasion, Quaid-e-Azam said, Hindu and Muslim, though living in the same towns and villages, and had never been blended into one nation, they were always two separate entities. Syed Ahmad Khan was the first Muslim leader of the subcontinent who used the word nation, Qaum, for the Muslims. In clear language, he pronounced that the Hindus and the Muslims were two different communities with different interests. After learning bitter lesson from the Hindu-Urdu controversy, he reached the conclusion that both the communities could not work together. His views were evident in his speech delivered in 1886, in which he said, the system of representation by elections means the representations of the views and thoughts of the majority of the population. यानी अगर हिंदुस्तान में हिंदू अगर हिंदुस्तान में मगरब का तर्ज जमहूरियत राइज कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान पर मेजॉरिटी की हुकूमत होगी और वो हुकूमत जो है वो हिंदुओं की होगी. In a country like where caste distinctions still exist, where there is no fusion of interest of various races, where religious differences are still violent, where education in the modern sense has not made an equal or proportionate progress among all sections of the population. I am convinced that the introduction of the principles of the elections, pure or simple, by the representation of various interests in the local board and district councils would be attended with the evil of greater significance than pure economic consideration. The large community would totally override the interest of the smaller community. According to V.S. Smith, Sir Syed Ahmad Khan was not concerned with material things only. His movement was one of general reform. I was inspired by the thought that the Muslims of India were separate people and nation who must not be absorbed with Hinduism. एस पी वी ए समित जो है उसने भी इकरार किया कि सर सैयद अहमद खान ने जो दो कौमी नज़रिए का तस्वुर पेश किया उसकी अहमियत ये है कि इसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में अपने आप को अलहदा समझने लग गए हैं और इसी दो कौमी नज़रिए की वजह से वो हिंदुइज़म के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं हुए. वाहिद मज़हब था मुस्लिम मज़हब इस्लाम, जो हिंदू मत में अब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ बल्कि उसने हिंदू मत पर अपने असरात मुरतब किए. हिंदू मत ने उस पर अपने असरात मुरतब नहीं किए. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट ऑन मुस्लिम्स ऑफ हिंदुस्तान. अलीगढ़ मूवमेंट
जब शुरू की गई तो अलीगढ़ मूवमेंट के इफ़ेक्ट्स क्या हुए? हिंदू हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो शनाख्त थी, मुसलमानों की जो जो जद्दोजहद है, जो पाकिस्तान की मूवमेंट है, उस पर अलीगढ़ मूवमेंट के क्या असरात हुए? अलीगढ़ मूवमेंट ने तरीके पाकिस्तान पर या जो पाकिस्तान की मूवमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा असरात डाले। वो असरात क्या थे वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मुस्लिम रिकॉन्सिलिएशन, इंग्लिश मुस्लिम रिकॉन्सिलिएशन। Due to Aligarh movement, the feelings of hatred against Muslims start diminishing from the heart of the English. The English started coming closer to the Muslims. अलीगढ़ मूवमेंट से सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कोशिशें की, उन्होंने जो समाजी और अदबी और इल्मी मूवमेंट शुरू की, उसकी वजह से इंग्लिश अंग्रेज़ और मुसलमानों के दरमियान रिकन्सिलिएशन होने लगी। मुसलमान और अंग्रेज़ एक दूसरे के करीब आने लगे। अंग्रेज़ों पर ये वाज़ेह होने लगा कि मुसलमान जो है वो सिर्फ लड़ाका कौम नहीं है, वो वैशी नहीं है, अजड़ नहीं है, वो इल्म दोस्त भी हैं, वो उनकी ज़िंदगियों के और पहलू भी हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने लग गए। उसके बाद है जी प्रोटेक्शन ऑफ राइट। Aligarh movement created an awareness of the protections of right among the Muslims. Sir Syed spent whole of his life in improving the educational, social, economic, and political affairs of the Muslim. Aligarh College was the biggest education of the Muslim. Its educated persons presented the problems of the masses before the government that considered from favorably. In 1906, the demand for separate electoral forward through the Shimla deputation was accepted. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, किस तरह से अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो बुनियादी हकूक़ उन्हें हिंदुस्तान में हासिल हैं उनको किस तरह से अचीव करना है। ये बातें किसने बताई? ये बातें अलीगढ़ कॉलेज के जब तलबा आए वहाँ पर उन्हें ये इल्म बताया गया कि उनके कौन कौन से हकूक़ हैं और उन्हें अपने हकूक़ किस तरह से हासिल करने हैं। चुनांचे 1906 में जो शिमला डेपुटेशन गया तो उसने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया और उनके जो रिप्रेजेंटेशन का अंदाज़ था वो इतना सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड था कि अंग्रेज़ों ने वादा किया कि हाँ जी, ये डिमांड आपकी बिल्कुल जायज़ है, हम इस पर हमदर्दाना गौर करेंगे, और बिल आखिर मुसलमान अपना ये हक लेकर रहे। सप्लाई ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सबसे अहम पहलू, सप्लाई ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। द मुस्लिम गॉट एजुकेशन फ्रॉम अलीगढ़ मूवमेंट and made themselves capable to face Hindu and the English. Muslim League was established by the educational political leadership that also owed to Aligarh movement. Political awareness was created among the masses by Aligarh movement. In fact, the struggle for the establishment was organized or originated from this movement. Supply of political leadership. अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए, हिंदुओं का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत थी, जो मगरब के बारे में जानते हों, जो मगरब के निज़ाम के बारे में जानते हों, जो मगरब की सियासत के बारे में जानते हों। चुनांचे जब अलीगढ़ मूवमेंट चली और उसके तालीमी इदारों ने तलबा को एजुकेशन दी तो वो इस काबिल हो गए कि वो मुसलमानों की रहनुमाई कर सकें। चुनांचे अलीगढ़ कॉलेज से जो फ़ारिग तहसील तलबा थे उन्होंने मुसलमानों के लिए लीडरशिप मुहैया की, वो मुसलमानों के लीडर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सेपरेट नेशन। अली गवर्नमेंट मेड द मुस्लिम्स रियलाइज दैट दे वर अ सेपरेट नेशन हैविंग अ ग्लोरियस पास्ट
and also made it clear that Hindu and Muslims were two nations and could not unite together. Moreover, Hindus were not the well-wisher of Muslims. This two-nation theory was made the basis of Pakistan movement by Allama Iqbal and Quaid-e-Azam Ali Jinnah, Quaid Muhammad Ali Jinnah, who got a separate homeland for Muslims. सेपरेट नेशन का तस्वुर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया और इसकी आबियारी उन्होंने अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से की। अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ के इदारों के पढ़े हुए तलबा थे, उनको ये बताया कि आप एक अलहदा कौम हैं, आपका हिंदुस्तानी आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान के तौर पर जदोजहद करनी चाहिए। चुनाचे बाद में आने वाले हमारे लीडर्स क़ायद आज़म और मोहम्मद अली जिन्नाह उन्होंने भी इसी पर अमल किया। Acquisition of Western education. Muslims were afraid of Western education, but they could not make progress without it, as the source of modern science was the English language, so it was necessary for them to learn it. Therefore, arrangements of Western sciences side by side with Islamic education were made in Aligarh College that motivated a large number of Muslims to get education. Aligarh movement also pursued other affluent Muslims to start educational institute, and in a short time the Muslims become prominent in the field of English and modern education. अलीगढ़ के प्लेटफार्म से मुसलमानों ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, साइंस की तालीम हासिल की और अलीगढ़ के जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें जो हिंदुस्तान के कोना कोना करिया करिया से जो मुसलमान आते थे, जो साहिब हैसियत थे, उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से इंस्पायर होकर अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसलमानों के लिए कॉलेजेस और स्कूल कायम किए और मुसलमानों को जो मॉडर्न तालीम थी उसकी तरफ राग़िब किया। और अब मुसलमान इस काबिल हो गए कि वो हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुओं का मुकाबला कर सके तालीमी मैदान। इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अलीगढ़ मूवमेंट attract the Muslims towards education and made them unable to improve their economic condition. By getting the share in government job, the Muslims rose to the higher position, and in this way the economic condition of the Muslims improved a lot. मुसलमानों को मुसलमान ना तो मुकाबले का इम्तिहान दे सकते थे एजुकेशन के बगैर, ना ही वो दूसरी आला मुलाजमतों में आ सकते थे। चुनाचे अलीगढ़ मूवमेंट के प्लेटफार्म से जब उन्होंने तालीम हासिल की तो वो इस काबिल हो गए कि वो गवर्नमेंट की आला सर्विसेज और मुकाबले के इम्तिहान देकर हुकूमत इंग्लिश शीशा के जो बड़े बड़े अहदे हैं उन पर फायज हो सके। जब वो ये अहदे लेने के काबिल हो गए तो उनकी जो माशी हालत है वो ख़ुद ब खुद ही बेहतर होने लग गई। अलीगढ़ मूवमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो इकनॉमिक प्रोग्रेस थी उसको बेहतर किया। इसके बाद है ये मुस्लिम यूनिटी। The government created a sense of Muslim nationality. A Muslim, wherever he lives in the world, is a member of Muslim nation. In 1919, that the educated youth of Aligarh launched Khilafat movement for the Muslims of Turkey. They created a sense of unity among the Muslims, hence feeling of union, relationship and brotherhood were developed among them. यानी अलीगढ़ के इदारों के पढ़े हुए लोगों में ये सेंस उजागर हो गई कि मुसलमान जो है वो एक कौम है, वो एक मिलत है, वो एक है, जिसकी वजह से जब 1919 में तुर्की की खिलाफत को ख़त्म किया जा रहा था तो मुसलमानों ने ये अलीगढ़ कॉलेज ही के पढ़े हुए लोग थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट कायम की और मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि वो बग़ैर किसी नस्ली इम्तियाज़ के, बग़ैर रंग व रूप के वो एक हैं। यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को ये पावर कराने की कोशिश की कि मुसलमान एक है। कंक्लूड। अब इसको हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट ने मुसलमानों के लिए क्या, तो इसका हासिल बहस ये है कि द अलीगढ़ मूवमेंट इंजेक्टेड अ लाइफ इन द
dormant body of the Muslims nation and help them to regain their lost position of eminence and glory. It revived confidence among the Muslims to fight for their economic and social rights. The Aligarh movement was a broad movement which left its impact on every phase of the Muslim life. The action taken by Sir Syed left a far-reaching impact on the social, economic, religious, political, and cultural aspects of the Muslims. His respects and example receives hope and self-confidence, showed new ways to progress, and opened doors for the Muslim to modern education and economic prosperity. हिंदुस्तान के मुसलमान इस काबिल हो गए कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सके, वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके, वो सियासत में अमली तौर पर हिस्सा ले रह सके, वो तालीम के मैदान में तरक्की कर सकें, उनकी मईशत मजबूत हो सके और मुसलमानों ने बिलाखिर अलीगढ़ के प्लेटफार्म से जो सबक हासिल किया था उस सबक ने उन्हें इस काबिल बना दिया कि उनका जो रास्ता है, उनकी जो मंजिल है, उनकी जो डेस्टिनेशन है, उनका जो गोल है, उसको अचीव करने में वो साबित कदम रहे। और अलीगढ़ की वजह ही से सर सैयद अहमद खान की बेमिसाल कोशिशों की वजह से बिलाखिर मुसलमान हिंद अपने लिए एक अलहदा वतन लेने में कामयाब हो गए।